हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्शन अनस्टेडी स्टेट या ट्रांसिएंट इसको बोलते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी डज नॉट वेरी विथ टाइम, क्या बोल रहा है? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डज नॉट वेरी विथ टाइम, इट इज सेड टू बी स्टेडी स्टेट। क्या बोल रहा है? सिंपल है कि जो टेम्परेचर वेरी नहीं करता विथ टाइम, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। बट इफ इट इज एब्रुप्ट चेंज, इट इज सरफेस चेंज, surface temperature, its body attain equilibrium temperature or a steady state after some period. During this period, the temperature varies with time. The body is said to be unsteady. जो टेम्परेचर वेरी करता है विथ टाइम उसको बोलते हैं, जो टेम्परेचर वेरी करता है टाइम को उसको बोलते हैं अनस्टेडी और ट्रांजिएंट स्टेट। द टर्म ट्रांजिएंट और अनस्टेडी designates a phenomenon which time dependent. The steady state is thus the limit of transient temperature distribution for a large value of time. Conduction of heat is unsteady state refers to the transient condition wherein the heat flow and temperature distribution at any point of a system vary continuously with time. Transient conditions occurs in किस में रहता है? कूलिंग ऑफ आईसी इंजिन्स में रहता है, ऑटोमोबाइल इंजिन्स में रहता है, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटल बिलेट्स में रहता है, कूलिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ फूड में रहता है, और हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल बाय क्वेंचिंग इसमें होता है। स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ वेरियस हीट एक्सचेंज यूनिट इन पावर इंस्टॉलेशंस में होता है। साथ ही साथ ब्रिक बर्निंग में होता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में होता है। द टेम्परेचर फील्ड इन एनी ट्रांजिएंट प्रॉब्लम इन जनरल इज गिवन बाय T equals to F x y z tau. During the unsteady state, the change in the temperature may follow a periodic or non-periodic variation. Non-periodic variation क्या है? In a non-periodic transient state, the temperature at any point within the system is non-linearly with time. Simple है. In non-periodic transient state, the temperature at any point within the system varies non-linearly with time. इसको बोलते हैं non-periodic variation. ये भी important है. एग्जाम्पल क्या इसका? हीटिंग ऑफ ingot in a furnace, cooling of bar blanks and metal billets in a steel work etc. ये है एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है। अभी पीरियोडिक वेरिएशंस क्या है? इन द पीरियोडिक ट्रांजिएंट स्टेट द टेम्परेचर अंडरगो पीरियोडिक चेंज विद इन द सिस्टम विच आर आइदर रेगुलेट और इरेगुलर बट डेफिनेटली साइक्लिक. Regular periodic variation is characterized by a harmonic sinusoidal or non-sinusoidal function, and irregular periodic variations by any function which is cyclic but not necessarily harmonic. Examples: the temperature variations in cycle of IC engine में होता है, building during a period of 24 hours, surface of earth during the period of 24 hours, or heat processing of regenerators, whose sparking and heated alternately by fuel gases and cooled by air etc. Transient heat conduction probably may be solved by the following methods. Analytical है, graphical है, analogical है और न्यूमेरिकल. ये चार मेथड्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ने भी पड़ेंगे. इसमें से एनालिटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है
तो अब ये डेरिवेशन पढ़ लेते। हीट कंडक्शन इन सॉलिड हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कंडक्शन, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, लंप पैरामीटर एनालिसिस। ये क्या है? लंप पैरामीटर एनालिसिस है। तो चलिए देखते। ऑल सॉलिड्स हैव अ फाइनाइट थर्मल कंडीशंस, देयर विल बी द ऑलवेज द टेम्परेचर ग्रेडियंट इनसाइड द सॉलिड wherever heat is added to remove. However, for solid a large thermal conductivity with surface areas that are large proportional to the volume, like plates and thin metallic wires, the internal resistance L by Ka can be assumed the small negligible comparisons with convective resistance 1 by Ha at surface. Typical examples in this type of heat flow are heat treatment of metals or time responsible for thermocouples and thermometers, etc. The process in which the internal resistance assumed to be negligible is compared with the surface resistance is called Newtonian heating or cooling process. The temperature in this process is considered to be uniform at a given time. Such analysis is called lump parameter analysis because whose solid whose energy at any is function its temperature, the total heat capacity is treated as one lump. तो यह डायग्राम। Let us consider the body whose initial temperature T through which is the place suddenly the ambient or any liquid is constant temperature, shown in the figure। ये आपको दिख ही रहा है। The transient responses of the body can be determined by relating its rate of change of internal energy with convective exchange at a surface that is। तो ये negligible internal thermal resistance है, कंट्रोल सरफेस है, ये बॉडी है, बट ये सिस्टम है। टाउ इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू T1, टाउ ग्रेटर देन 0, T इक्वल्स टू F टाउ। तो ये है, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल ये है, मतलब ये सर्किट डायग्राम है, बताया गया। तो चलिए देखते हैं लंप हीट कैपेसिटी सिस्टम का है। तो चलिए ये Q इक्वल्स टू माइनस रो VC dt बाई डी टाउ इक्वल्स टू HAZ T माइनस 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है। बट रो मीन्स डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इन kg पर मीटर क्यूब है, इसका यूनिट। V मीन्स वॉल्यूम ऑफ बॉडी मीटर क्यूब, C मीन्स होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी के जूल पर kg डिग्री सेल्सियस, H मीन्स होता है यूनिट ऑफ सरफेस कंडक्शन वैट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस, T मीन्स टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम डिग्री सेल्सियस में आता है, और S मीन्स होता है सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द बॉडी मीटर स्क्वायर, एरिया है, और TA मीन्स होता है एम्बाइंट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, एंड टाउ मीन्स टाइम सेकंड में होता है। तो ये सब है पैरामीटर्स है। तो इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए सारा इक्वेशन बनाऊं। तो चलिए देखते हैं। आफ्टर रीअरेंजिंग द इक्वेशन इंटीग्रेटिंग वी गेट, इस सारे इक्वेशन को क्या करना है अपने को, ये सारे इक्वेशन को क्या किया गया है, रीअरेंज किया गया है। तो रीअरेंज करके इंटीग्रेट करना पड़ता है, किसी भी हीट ट्रांसफर के इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ता है सबसे पहले, और फिर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो चलिए ये क्या है, रीअरेंज करके इंटीग्रेशन कर दिया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t माइनस टी इक्वल्स टू माइनस HAZ इंटू रो VC, इंटीग्रेशन क्या है डी टाउ। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो और ln t माइनस टी इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन ln 1t माइनस टी होता है, इक्वल्स टू माइनस साइन HAS अपॉन रो VC टाउ प्लस C1। ये आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में ये सब कुछ, और इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 3 हो गए। द बाउंड्री कंडीशंस आर द कि एस टाउ इक्वल्स टू 0, T इक्वल्स टू T1 इनिशियल सरफेस टेम्परेचर,
C1 equals to ln T minus T1 minus TA from equation number 3. ये 3 equation number 3 है. Hence ln T minus TA equals to minus HAS rho VC tau plus ln T1 minus TA. Substituting the values in equation number 3. इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है. तो और t माइनस टी ए टी वन माइनस टी आई माइनस टी इक्वल्स टू ये t थीटा अपॉन थीटा आई. ये नहीं भी लिखा तो भी चलता है, फिर भी इन्होंने लिखा है एक्सपेक्ट करने के लिए इक्वल्स ब्रैकेट में माइनस एच ए एस रो वी सी टाउ. ये इक्वेशन नंबर क्या है, 4 है. तो ये है फ्रॉम फॉलोइंग पॉइंट्स आर वो नोटिंग. इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 आर द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी फॉर न्यूटोनियन हीटिंग कूलिंग इंडिकेटिंग द टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली एज द टाइम. तो ये है पूरा ग्राफ बनाया गया है. एक्सपोनेंशियल हीटिंग है, ये एक्सपोनेंशियल कूलिंग है, टेम्परेचर और टाइम के अकॉर्डिंग बनाया गया. और ये है ट्रांजिशन टेम्परेचर रिस्पॉन्सेस. जो कर्व दिख रहे हैं आपको ये पूरे बनाए गए टाइम थीटा अपॉन थीटा है. इस पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है. बट द क्वांटिटी ऑफ रो वी सी अपॉन एच एस एज द डायमेंशन ऑफ द टाइम इन द थर्मल टाइम कांस्टेंट डिनोटेड बाय टाउ. The value is indicating for the rate of the response of the system sudden change in its environmental temperature, that is the how fast body will respond change in the environmental temperature. The tau upon 1 upon HAS rho VC equals to RTH CTH, where RTH 1 upon HAS resistance to convection heat transfer. क्या होता है, रेजिस्टिव टू कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर. तो CTH इक्वल्स टू रो VC को लम्प थर्मल रेजिस्टेंस इन सॉलिड, ये बताया गया इसमें. तो इन ए फिगर एज द इंक्रीज इन RTH और CTH it causes the solid to respond more slowly to change in a thermal environmental and will increase the attain thermal equilibrium tau equals to 0. tau equals to 0. तो फॉर इक्वेशन फिगर 4.1 बोल रहे हैं. ये फिगर 4.1 का बारे में बता रहे हैं यहाँ पे. ये क्या है, shows the analog electric network lump heat capacity system in which CTH equals to rho VC represents the thermal capacity of the system. The value of the CTH obtained from the following thermal electrical equation by similarity. Q equals to rho VC T equals to CTH into T thermal equation है. और S equals to CE इलेक्ट्रिकल इक्वेशन है. S equals to कैपेसिटर चेंज है. C means the capacitance of the condenser and E means voltage when the switch is closed. 4.1 solid is charged to a temperature theta on opening the switch. The thermal energy stored CTH is dissipated through the thermal resistance. RTH equals to 1 upon HS and the temperature of the body decays the time from the analogous condition at C. Electrical circuits may be determined the transient behavior of the thermal body. तो ये है the power of exponents, that is HAS upon rho VC tau arranged in the dimensional from the follows. Dimensions के थ्रू यहाँ पे अरेंज किया गया है. But HAS upon rho VC tau equals to HV upon KAS A square upon into K upon rho V square C into tau equals to H LC upon K alpha tau LC square. The equation number 5 है.
where alpha equals to L by rho c thermal diffusivity of the solid. LC means क्या होता है, characteristic length, volume of the solid V और surface area of the solid S. The value of characteristic length LC for the simple geometric shape of given below. तो इस simple geometric shape के हिसाब से इसको जो है कैरेक्टराइज किया गया है। तो चलिए देखते हैं फ्लैट प्लेट के लिए एल सी इक्वल टू वी बाई एस एल बी एच अपॉन टू बी एच एल बाई टू सेमी थिकनेस के लिए, और वेयर एल बी एंड एच थिकनेस वाइट हाइट ऑफ द प्लेट। सिलेंडर लॉन्ग एल सी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन टू पाई आर एल आर बाई टू, वेयर द आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर है। और स्पीयर के लिए क्या है, एल सी इक्वल टू थ्री अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर, तो आर बाय थ्री हो गया, वेयर आर इक्वल रेडियस ऑफ द स्पीयर। और क्यूब के लिए क्या है, एल सी इक्वल टू एल क्यूब अपॉन सिक्स एल स्क्वायर इक्वल टू एल बाई सिक्स, वेयर एल इक्वल साइड ऑफ द क्यूब। फर्दर द इक्वेशन 5 क्या है, इक्वेशन 5 द नॉन डायमेंशनल फैक्टर एच एल सी अपॉन के इज कॉल्ड बायोट नंबर बी आई। इसको बायोट नंबर बोलते हैं एच एल सी अपॉन के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी डेफिनेशन भी बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। डिफाइन बायोट नंबर, व्हाट इज बायोट नंबर, तो ये आपको सबको बताना है। ये डायमेंशनल नॉन डायमेंशनल फैक्टर है बायोट नंबर, इसका कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि सब कुछ कैंसिल हो गया तो बचा कुछ नहीं, इसके लिए इसको नॉन डायमेंशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि आपने कभी फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन में पढ़ा होगा कि रेनॉल्ड्स नंबर है, वैसे बायोट नंबर है। दैट इज बी आई इक्वल टू एच एल सी अपॉन के बायोट नंबर, ये इसका फॉर्मूला है। तो यही था इसका, इट गिव्स द इंडिकेशन ऑफ द रेशियो ऑफ द internal resistance of the surface convection resistance when the value of Biot number is smaller, indicating the system has small internal conduction resistance related to the small temperature gradient existing the practically uniform temperature within the system. The convective resistance then the predominates and the transition phenomenon is controlled by the convective heat exchange. तो ये है, तो आज के लिए मैं बस इतना ही पढ़ा रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए। और ये आप कर भी सकते एग्जाम में आए तो, या फिर इसको स्किप भी कर सकते, ज्यादा कोई नहीं। इसके अल्टरनेट पे आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते क्योंकि थोड़ा सा ये टफ है, पर इसका जो है आपको इसमें सिर्फ यही ध्यान में रखना है ब्रीफ में कि इसमें बायोट नंबर क्या है, बायोट नंबर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, और बायोट नंबर ये है डायमेंशनल लेस नंबर, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो यही था आज की इस वीडियो में, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।